students, how are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the channel with the new chapter of Science Class 3rd. All right, and the chapter is chapter number 5 about the world of birds. So, students, as we all know, that birds are the most beautiful and the only flying creatures of our nature. Right. So, in this session, we will learn about the body structure of a bird. Okay. And then we will learn about a special structure the birds have, that is beaks. And then we will discuss that how does a bird fly. And also we will learn about the feathers of birds. Okay. So, let's start the chapter. First of all, what we have to do is you have to look at the pictures of some birds and write their names in the space provided. They have given you the pictures of some birds. You have to identify these birds and then you have to write their names. So the first bird, students, the first bird is Myna. Alright, so we will write over here M-Y-N-A, Myna. Second bird is hen, which provides you egg. So H-E-N, hen. Then third bird is peacock. So we will write over here peacock. P-E-A-C-O-C-K, peacock. Then this is eagle. So write over here E-A-G-L-E, eagle. Next is duck. D-U-C-K, duck. And the last bird is kiwi. It is a kind of flightless bird. Means it cannot fly. ठीक है, bird है, still ये fly नहीं कर सकती है. Alright, चलते. So, birds are one of the most beautiful and colorful creatures found on the earth. Some of the birds, like parrot, entertain us. Birds lay eggs to produce their young ones. Most of the birds can fly. Birds also need food. Some birds eat grains while other eats flesh. So what they're saying, as I told you, birds हमारे अर्थ पे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्रिएचर है. ऑलराइट, कुछ ऐसी बर्ड्स है लाइक पैरट. पैरट भी क्या है, एक बर्ड है एंड ये क्या करता है, पैरट हमें एंटरटेन करता है. वेयर एज बर्ड्स क्या करती है, बर्ड्स अपने यंग वंस यानी कि अपने बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए बर्ड्स एग्स ले करती हैं. ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादातर बर्ड्स ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो फ्लाई कर सकती हैं. उसके साथ साथ बर्ड्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है. ऑलराइट, कुछ बर्ड्स सिर्फ ग्रेन्स खाती हैं, कुछ बर्ड्स अदर एनिमल्स के फ्लैश यानी कि मीट को भी खाती हैं. So first of all, we have body structure of bird. You can see this is the bird and they have shown you the different body parts of a bird. So birds have a streamlined body with the head, wings, tail and legs. ठीक है, ये क्या है, एक बर्ड है जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स व्हाट, एक बोर्ड शेप्ड बॉडी, यानी कि मिडिल वाले पार्ट में से काफी ब्रॉड होती है एंड एजेस वाले पार्ट में से नैरो होती है. इस टाइप की शेप को हम स्ट्रीमलाइन या बोर्ड शेप कहते हैं एंड बर्ड्स की बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन ही होता है. ऑलराइट, उसके अलावा बर्ड्स के पास हेड है, ये अब हेड वाला पार्ट हो गया. देन विंग्स, ये आपके बर्ड्स के विंग्स हैं. देन बर्ड्स के पास टेल भी होती है एंड ऑल्सो बर्ड्स के पास लेग्स भी होते हैं. ठीक है, दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी. ठीक है, बर्ड्स के ऑल ओवर द बॉडी फेदर्स प्रेजेंट होते हैं. बर्ड्स हेड हैज अ बीक विद नो टीथ. बर्ड्स के हेड वाले पार्ट में स्टूडेंट्स यू कैन सी इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसे हम बीक कहते हैं. ओके, सो एज आई टोल्ड यू द बर्ड्स हेड हैज अ बीक विद नो टीथ. बर्ड्स के पास टीथ नहीं प्रेजेंट होते, उसके पास बीक होती है. दे हैव 2 holes on the beak which act as nostrils. ठीक है, बर्ड्स के बीक में 2 holes प्रेजेंट होते हैं जो एज ए nostril एक्ट करते हैं, उसी के थ्रू बर्ड्स ब्रीथ करती हैं. Alright, the bones of birds are hollow and lightweight. Birds use their beaks and claws to hold and eat their food. What they're saying कि जो birds की bones है वो काफी hollow यानी कि अंदर से खोखली होती है, उसमें एयर फिल्ड होती है जिसकी वजह से बर्ड की बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है एंड बर्ड्स कैन इजीली फ्लाई बिकॉज ऑफ दैट लाइट वेटेड बॉडी ओनली. ऑलराइट, आफ्टर दैट बर्ड्स अपनी बीक्स का यूज़ करती हैं, क्लॉज का यूज़ करती हैं फॉर व्हाट, टू होल्ड and to also eat their food. Chalo. So first of all, we will discuss about beaks of birds.
So there are no teeth. Birds में teeth present नहीं होते हैं. There are no teeth. Birds hold food using their beaks. Birds जो है अपना beaks का use करके ही food को hold करती हैं and then उसको खाती हैं. Depending on the type of food they eat, different birds have different types. ठीक है. So किस टाइप का फूड एक बर्ड खाती है इस पर डिपेंड करता है कि हर एक पर्टिकुलर बर्ड के पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ बीक होती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. सो ये भी एक टाइप ऑफ बीक होती है जो कि सीड ईटिंग बर्ड्स के पास होती है. सीड ईटिंग बर्ड्स मीन्स ऐसी बर्ड्स जो सीड या ग्रेन्स को खाती हैं. सच बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. ऑलराइट, सच एज स्पैरो, पिजन. ठीक है, ये ऐसी बर्ड्स हैं जो नट्स एंड सीड्स को क्रैक करके अपनी स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स के थ्रू ईट करती हैं. यू कैन सी दिस इज द सीड ईटिंग बर्ड्स. इनकी जो ये शेप है बीक की, ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है, शॉर्ट एंड हार्ड बीक है. देन यू कैन सी दिस इज द बर्ड नोन एज हमिंग बर्ड. एंड हमिंग बर्ड की जो बीक है, इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग, ट्यूब लाइक एंड पॉइंटेड बीक. Alright, so next they have given you what? Pointed beaks only. So जो nectar feeding birds है, यानी कि flowers में से nectar को suck करने वाली जो birds होती हैं, example humming birds, what they do? They suck the nectar from the flowers with the help of their long tube-like pointed beak. Then we have short and rounded beak. So fruit eating birds. अब बात करते हैं short and rounded beak की. So वो जो fruit eating birds है, fruits खाने वाली birds है, such as parrot, ये क्या करती हैं? They pick and grind the fruits and seeds with short and rounded beak. Fruits को, seeds को pick करना, उसको grind करना, सब कुछ अपनी short and rounded beaks के through करते हैं. Then we have strong and hooked beaks. Strong and hooked beaks किसके पास होती हैं? जो flesh eating birds है, यानी कि जो meat खाने वाली birds है, example eagle, vulture. What they do? They cut and tear the flesh. किसी भी other animal के flesh को cut and tear करने के लिए they have a very short, sharp and hooked beak. You can see this type of beak is known as what? A sharp, short and hooked beak. Next we have strong chisel shaped beak. So this type of beak, strong and chisel shaped beak जो है वो उन birds में होती है जो कि wood को drill करते हैं या nuts को crack करते हैं. ठीक है? So for that we have pecking birds. Pecking birds means example woodpecker. This is the woodpecker. It is a kind of pecking bird. ये अपनी strong and pointed beak का ही use करके hard woody tree trunk. Tree trunk means the hard woody stem of the tree is known as trunk. So trunk वाले part में ये अपनी beaks का use करके ही क्या करती हैं? Hole बनाती हैं and उन holes में से insects को बाहर निकाल कर pull out करके they eat those insects. Alright. Then next we have broad and flat beak. So broad and flat beaks are with the water birds. So water birds हैं such as duck. What they do? They catch and fishes and worms with their broad and flat beak. ठीक है, fishes को, worms को catch करके खाती हैं with the help of their broad and flat beaks. Alright. Next we have sharp edged beak. So fish eating birds. Fish खाने वाली जो birds है such as pelican. What does it do? It catches the fishes, frogs and crab. पानी में से fishes, frogs and crab को catch करके खाना ये अपने sharp, broad and long edged beak के through कर पाते हैं. Alright, so these were the different types of beak with the specific type of bird. The next topic which we have is that is how does a bird fly? अब एक bird कैसे fly करती है? क्या special features एक bird's body के पास होते हैं? With the help of those, a bird could fly in the sky. So the wings of birds, what they're saying students कि जो birds के wings होते हैं, they help them to fly in the air. ये help करते हैं bird को to fly in the air. The size and shape of a bird's wings. एक bird के wings के जो size and shape है, वो उसकी ability that is to fly, migrate, hover, dive and even soar. इन सभी abilities को affect करता है. Then as I told you कि birds की body shape streamline होती है and ये streamline body shape एक bird को help करती है to cut through the air. Air को cut करके आगे की तरफ fly करने में. Their bones are light. इनकी bones काफ़ी light weighted होती हैं, hollow होती हैं, जिसकी वजह से इनकी body काफ़ी light हो जाती है.
राइट. द बॉडी हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. उसके अलावा बर्ड की बॉडी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होता है बोन्स का. ठीक है, एज आई टोल्ड यू बोन्स इनकी हॉलो होती हैं जिसकी वजह से दे कैन इजिली फ्लोट इन द एयर. फेदर्स प्रेजेंट इन द विंग्स. इसके अलावा इनके विंग्स में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें एयर को कट करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो कीप देम इन द फ्लाइट. ऑल्सो दे हैव अ टेल. बर्ड्स के पास स्टूडेंट्स टेल भी प्रेजेंट होती है एंड ये टेल एक बर्ड को हेल्प करती है टू चेंज इस डायरेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट. यानी कि जिस वक्त फ्लाई कर रही है उस दौरान अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बर्ड्स अपनी टेल का यूज करती हैं. ऑलराइट. Now students, we have some flightless birds also. Flightless birds means the birds which cannot fly. ठीक है, ऐसी बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं. बर्ड है स्टिल फ्लाई नहीं कर सकती, केवल वो लैंड पे ही वॉक करती है विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन एक्सेट्रा. ये बर्ड्स क्या है? विच कैन नॉट फ्लाई. दे मूव ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स एंड दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. All right, chalo. So first of all, they have given you the ostrich. This is the picture of ostrich. So ostrich कहाँ मिलती है? It is found in Africa. ठीक है, ये सबसे largest bird है in the world. Ostrich. It cannot fly, but it can run very fast. ये fly नहीं कर सकती है bird, but बहुत fastly run करती है. इसके legs बहुत long होते हैं and जो wings हैं, ये help करते हैं ostrich को to balance while running. Then next we have penguins. Penguins are found in the Antarctic region. Penguin, this is a penguin. It is also a flightless bird only. And ये क्या करते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? Antarctic region में मिलते हैं. They use their wings to balance their body while walking. Again, ये भी अपने wings का use करते हैं अपनी body को balance करने के लिए while they are walking on the land. Alright? And they can swim. ये बहुत अच्छे swimmers होते हैं. Means ये water के अंदर swim कर सकते हैं by flapping their wings. Then we have kiwi. This bird, this is kiwi and this is emu. Both are flightless bird only. So kiwi is found in New Zealand. Kiwi आपके न्यूजीलैंड में है and emu आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, emu is the second largest bird. emu जो है second largest bird है in the world after ostrich. Ostrich सबसे largest bird थी, उसके बाद second largest हमारी emu होती है and both the emu and kiwi cannot fly as I told you. Then the next topic which we have is feathers of birds. So as we all know कि birds के पास all over the body feathers present होते हैं and majorly birds के पास two types of feathers होते हैं. ये दोनों ही types के feathers जो है they differ in the size, shape, color and design. So first type of feather the birds have is down feathers. Down feathers क्या है students? काफी soft and fluffy feathers होते हैं. ठीक है, एंड ये फेदर्स एक बर्ड की बॉडी को फुल्ली कवर करते हैं टू कीप देम वार्म. सेकेंड टाइप ऑफ फेदर्स इज फ्लाइट फेदर. यू कैन सी ये आपके फ्लाइट फेदर्स होते हैं एंड ये काफी लॉन्ग एंड स्टिफ फेदर्स है ऑफ द बर्ड. दीज हेल्प देम इन फ्लाइट. फ्लाइट फेदर्स एज द नेम सजेस्ट ये इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं एंड ये कहाँ फाउंड किए जाते हैं बर्ड की बॉडी पे? ऑन द विंग्स एंड ऑल्सो ऑन द टेल. Next, what they have given you that birds need bathing to keep their feathers clean and flexible. So make a bird bath in a terrace garden or neighborhood park. So what they're saying is the fact to be known is कि birds को bathing की requirement होती है so that वो अपने body को अपने feathers को clean and flexible रख सके. So if you want तो आप एक bird bath बना सकते हो अपने terrace पे, garden पे या कहीं भी neighborhood park में जहाँ पे birds आके खुद को क्या कर सके? Clean कर सके. Next we have what? Nesting happens. So birds make different types of nest. As we all know, birds जो है क्या करती हैं? Nest बनाती हैं. ठीक है, जहाँ पे वो अपने eggs को lay करती हैं, फिर अपने babies को feed करती हैं, उनकी care करती हैं. Alright? So birds, हर एक particular bird एक different type of nest को बनाती है at a hidden and isolated places. कहाँ बनाएंगी? जो थोड़ा सा place कैसा होना चाहिए? Isolated होना चाहिए. अकेला सुनसान जगह होती है जहाँ पे. ठीक है, बाकी सब जगह से वो हिडन यानी कि छुपा हुआ होना चाहिए. इस तरीके के पर्टिकुलर प्लेस पे बर्ड्स मेक देयर नेस्ट. ऑलराइट, लाइक ट्रीज, है ना, ओल्ड बिल्डिंग्स, रूफटॉप, पोल्स एक्सेट्रा. बर्ड्स नीड्स नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स. एज आई टोल्ड कि बर्ड्स को नेस्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब उन्हें एग्स ले करने हैं अपने.
ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम फिर कुछ टाइम बाद जो एग्स हैं वो हैच होते हैं एंड द बेबी कम्स आउट एंड व्हेन द बेबीज ग्रो अप, उसके बाद जब बेबीज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, देन दे फ्लाई अवे एंड द बर्ड्स आल्सो लीव देयर नेस्ट। उसके बाद बर्ड्स भी उस नेस्ट को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली जाती हैं। देन दे बिल्ड न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले द एग्स अगेन। अगर दोबारा उसके बाद जब उन्हें एग्स ले करने होते हैं, उसके बाद वो दोबारा से न्यू नेस्ट बनाती है एक न्यू पर्टिकुलर प्लेस पर। इन अवर कंट्री नेस्ट आर यूजुअली बिल्ड, हमारे कंट्री में नेस्ट जो है यूजुअली फेब्रवरी एंड मार्च मंथ में बनाए जाते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, बर्ड्स अपने मटेरियल्स का, डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करती हैं लाइक एज ट्विग्स, वूल, कॉटन, ड्राई ग्रास, सो दैट दे कुड बिल्ड देयर nest. So first of all we have the tailor bird. You can see student, this is the nest of a tailor bird. ठीक है, so tailor bird क्या है, जो अपनी beak का यूज करके as a needle, tailor bird अपनी beak को as a needle यूज करती है and leaves को एक साथ ही sew करती है thread और wool से। इसीलिए इस bird को हम tailor bird कहते हैं and then it makes it's a very beautiful nest. Next we have the weaver bird. ये वीवर बर्ड है along with this nest. So students, this bird, weaver bird अपने nest को बनाती है with twigs and grass. किसकी हेल्प से? Twigs and grass की हेल्प से। The nest hangs from the branch of a bush or a tree. and ये nest जो है किसी भी एक bush या tree के branch से नीचे hang करता है। एक बॉटल शेप्ड का नेस्ट होता है वीवर बर्ड का, जिसमें एक टनल लाइक ओपनिंग होती है नेस्ट के लोअर एंड पे, नीचे की तरफ, लाइक दिस यू कैन सी। ऑलराइट, then we have the vulture. This is a nest of a vulture, you can see, and the vulture gathers sticks and puts them together in the shape of a shallow cup. So vulture ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करती हैं, वो केवल स्टिक को इकट्ठा करके उन्हें एक साथ ही एक शैलो कप की शेप में रखती हैं and that is the only nest of the vulture. Then we have the woodpecker. This is the nest of a woodpecker. And as I told you, woodpecker की जो बीक थी काफी शार्प एंड चिजल थी, जिसके थ्रू वो ट्री के ट्रंक को क्या कर सकती थी, उसमें होल बना सकती थी। सो सिमिलरली वुडपेकर क्या करती हैं, दे पेक अ ट्री ट्रंक विद दिस बीक टू मेक अ होल एंड देन उसके बाद ये होल भी क्या करता है, एज देयर नेस्ट एक्ट करता है। द एंट्री ऑफ दिस नेस्ट इज स्मॉल बट इट इज लार्ज इनसाइड द ट्रंक वेयर द एग्स आर लेड। एक्चुअल में इस नेस्ट की जो एंट्री है वो काफी स्मॉल, छोटी सी होती है, लेकिन अंदर से ये क्या है, काफी लार्ज स्पेस अवेलेबल होता है जहां पे वुडपेकर के थ्रू अपने एग्स को ले किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द कुकू बर्ड। ठीक है, कुकू विच इज आल्सो नोन एज कोयल। इट इज अ वेरी क्लेवर बर्ड। ये बहुत क्लेवर बर्ड होती है बिकॉज इट क्वाइटली लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। ये बहुत ही शांति से अपने एग्स को दूसरी बर्ड्स के नेस्ट में जाकर लेकर देती है। It chooses a nest where its eggs looks like the other bird's eggs. एक्चुअल में कुकू बर्ड ऐसे नेस्ट को चूज करती है जहां पे उसके जो एग्स हैं वो दूसरी बर्ड के, जिसके नेस्ट में वो अपने एग्स को ले करने वाली है, उसी के एग्स जैसे सिमिलर दिखे, उसी नेस्ट में जाकर कुकू बर्ड अपने भी एग्स को ले करती है। एंड द अदर बर्ड, जो दूसरी बर्ड है, उन्हें क्या नहीं पता चलता है, इस बारे में पता नहीं चलता कि ये जो एग्स हैं ये कुकू बर्ड के हैं एंड इट हैचेस द कुकूज एग्स। और वहां पे कुकू के एग्स जो है हैच भी हो जाते हैं। इवन वो अदर बर्ड कुकू के बेबीज को भी फीड करती है। ऑलराइट, now next we have the penguin. So student, you can see this is the penguin and as I told you, the penguin simply collects a few pebbles. पेंगुइन क्या करते हैं, पेंगुइन सिंपली कुछ फ्यू पेबल्स को या स्टोन्स को कलेक्ट करके नेस्ट बनाते हैं ऑन द ग्राउंड ओनली एंड देन दे ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड ओनली। ऑलराइट, you can see this is the hummingbird. It is the only bird that can fly backwards, forwards, up, down, even stabilize itself at a constant place while flying. What they're saying कि hummingbird अकेली ऐसी bird है जो कि backward यानी कि पीछे की तरफ, forward आगे की तरफ, up, down किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई कर सकती है। इवन खुद को फ्लाई करने के दौरान किसी एक कांस्टेंट प्लेस पे ये स्टेबलाइज भी कर सकती है एंड दिस इज द ओनली बर्ड विच कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक विच वी हैव इज दैट इज केयरिंग फॉर द यंग mice. So after a bird lays its egg, the eggs must be kept warm in order to hatch and the parent birds keep the eggs warm by sitting on
them. So एक बर्ड जब अपने एग्स को ले कर देती है, उसके बाद उन एग्स को वार्म रखना ज़रूरी है उनकी हैचिंग के लिए. सो उसके लिए पेरेंट बर्ड्स अपने एग्स के ऊपर बैठती हैं, ऑलराइट, सो दैट उन्हें वार्म किया जा सके. एंड व्हेन द बेबी इज फुली ग्रोन, जब अंदर एग के अंदर बेबी फुली ग्रो हो जाता है, उसके बाद वो बेबी एग शेल को ब्रेक कर कर इट द बेबी बर्ड कम्स आउट. एंड देन द पेरेंट्स फीड देम एंड कीप देम वार्म. उसके बाद जो पेरेंट बर्ड है अपने बेबीज को फीड करते हैं, उन्हें वार्म रखते हैं, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम, उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम द एनिमीज एंड बैड वेदर कंडीशन. The parent looks after the babies till their feathers grow and then they learn to fly. उसके बाद जो पेरेंट्स बर्ड हैं वो अपने बेबीज की तब तक केयर करते हैं जब तक उनके फेदर्स जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर जाते एंड दे डू नॉट लर्न टू फ्लाई. ठीक है, चलो. Now let us recall the chapter. So number 1, different birds have different beak types. As I told you, हर एक bird के पास different beak type होता है. All birds, सभी birds की जो body shape है streamlined body shape होती है, जिसमें head, wings, tail and legs जैसे part included होते हैं. Then all birds lay eggs and young ones hatch from these eggs. सारी birds जो है eggs lay करती हैं and उनके जो young ones है वो इन्हीं eggs के through hatch करते हैं. Birds have hollow bones. Birds की bones hollow होती हैं जो उन्हें air में float करने में help करती हैं. Also, tail head the birds. Birds का जो tail वाला part है वो उन्हें help करता है to change its direction during the flight. And also birds need nest. Birds को nest की भी ज़रूरत है to lay their eggs. Right? चलो. So the chapter is completed. This was all about the birds, their different features which make them the very unique and beautiful creature on the earth. So I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well and thanks to all.